Hello students, I hope you all are fine. In this video, we are going to continue the pair of linear equations in two variables for class 10th. For class 10th, till the previous video, we had completed about the cross multiplication method. Now in this video, I am going to tell you about the equations reducible to a pair of linear equations in two variables. When we see the word equation reducible, it means कि आपको कोई भी जो equation दी हुई है, if you are trying to solve it directly without reducing it to some other linear equation, तो आपको प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करने में. पहले हम उसे लीनियर इक्वेशन की फॉर्मेट में लाएंगे और देन वी विल सॉल्व इट. एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमें कोई इक्वेशन दी हुई है 2/x, लेट्स से 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू, एंड विद इट द अदर इक्वेशन इज 1/3x प्लस 1/2y इक्वल 13/6. अब इसमें जब तक हमने जितनी भी इक्वेशन सॉल्व करी है, इन एवरी लीनियर इक्वेशन वी वर नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर्स. इट वाज अ स्ट्रेट इक्वेशन इन विच एवरी वेरिएबल वाज देयर इन द न्यूमरेटर इटसेल्फ. अगर कोई फ्रैक्शन में भी टर्म होती थी इन विच वी हैव एनी नंबर इन द डिनोमिनेटर, वी यूज टू टेक एलसीएम एंड रिड्यूस इट टू अ प्लेन लीनियर इक्वेशन जहाँ पे फ्रैक्शंस ना इन्वॉल्व हो. अब अगर हमें ऐसे कोई सिचुएशन मिलता है तो व्हाट वी विल डू, we will assume 1/x as a variable. That is, we will say let 1/x equal to a and 1/y equal to b. The reason why we are doing this, so that कि हमारा जो variable है वो डिनोमिनेटर में ना आकर न्यूमरेटर में ही आए और एक स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन बने. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? If we substitute 1/x equal to a, then we can write it as a/2 plus b/3 इक्वल टू. अब इससे आप फर्दर, क्योंकि अब आपका ये वापस से फ्रैक्शन में है, तो अब आप इसे एलसीएम लेकर एक नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे. तो एलसीएम आप जब लेंगे तो आप इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. यू विल गेट 3a प्लस 2b इक्वल टू 12. अब आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, या आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हैं. अब नाउ अगर मैं 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो आई विल गेट a/3 plus b/2 equal 13/6. Again I will take the LCM so that I can remove the number from the denominator. LCM will be 6. Multiplying the complete equation by 6, I will get 2a plus 3b equal 13. Now I have two equations. These are now looking in the same format जिस अकॉर्डिंग हमने अब तक लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करा है. आपके पास इन्हें सॉल्व करने के लिए तीन मेथड होते हैं: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यू कैन यूज आइदर ऑफ द मेथड टू सॉल्व देम. लेट्स से इफ आई एम डूइंग एलिमिनेशन मेथड, तो आई विल ट्राई टू एलिमिनेट वन वेरिएबल फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस. फॉर दैट आई मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड द सेकंड इक्वेशन बाय 3. आई गेट 6a plus 4b equal 24. Here I will get 6a plus 9b equal 39. Now this equation third and this is equation 4. What I will do, I will subtract equation number third from equation number 4. That is subtracting equation 3 from equation 4. What I will do, changing signs, this will get cancelled out. I will get 5b equal 15. So from here I will get b equal to 5. Now putting the value of b in any equation, even put in first and second equation, there is no issue at all. You will get 5 equal b equal 3. Now putting the value of b equal 3 in any of the equation 1, 2, 3 or 4, you can substitute, you can get the value of a. Now let's say if I am putting b equal to 3 in equation number 1, I will get 3a plus 6 equal 12. On solving it, I will get 3a equal 12 minus 6, 3a equals 6 and a equal to 6/3, that is 2. So now I have both the values of a as well as for b. What I will do next is कि I will substitute that 1/x. I use the equation 1/x equal to a which I had earlier assumed for solving the question. On using this, I will get 1/x equal to a, that is 2, and 1/y equal to b, that is 3. From here I will get x equals to 1/2 and y equals to 1/. This
is the solution of the equation. अब ये तो आपकी बात होगी नॉर्मल इक्वेशंस की. आप एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जितने भी पार्ट्स आपको गिवन है सबको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे. अब अनदर थिंग, अगर सपोज लेट्स से इन द सेकेंड पार्ट मैं आपको बता देती हूँ आप अज्यूम कैसे करेंगे इसको. Remember, your assumption should make your equation simpler. It should not make your equation look complex. Reduce करने का फंडा बस एक ही है ताकि इक्वेशन सिंपलर बने और हम उसे इजीली सॉल्व कर पाए. इन द सेकेंड पार्ट यू गिवन 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू. तो अब आप इसमें सिमिलरली आपको एक और इक्वेशन इसमें गिवन है 4/√x प्लस माइनस 9/√y इक्वल -1. अब आप इसमें 1/x को अज्यूम नहीं करेंगे. यू विल अज्यूम लेट 1/√x be a and 1/√y be b. अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 एंड 4a माइनस 9b इक्वल -1. अब आप इसे नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे. ए और बी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे. 1/√x इक्वल टू a वाली वैल्यू एंड 1/√y इक्वल टू b की वैल्यू. एंड सिमिलरली फॉर एग्जांपल आपको थर्ड पार्ट में गिवन है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14, 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23. इफ यू विल ऑब्जर्व व्हाट यू विल सी कि आपके इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक पार्ट में तो वेरिएबल दे रखा है डिनोमिनेटर में और एक पार्ट में आपका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं है. तो आपको y के लिए अजम्पशन की जरूरत नहीं है. यू हैव टू अज्यूम ओनली फॉर x केस. तो व्हाट यू विल डू हियर, यू विल अज्यूम लेट 1/x बी a. अब आप यहाँ y के लिए अज्यूम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि y आपको डायरेक्टली मिल सकता है. वो कोई भी फ्रैक्शन के टर्म में नहीं है, वो डिनोमिनेटर में नहीं है. दैट यू विल हैव टू सॉल्व इट टू सम अदर वेरिएबल, लेट्स से b, c और एनी अदर वेरिएबल. तो आपकी इक्वेशन बनेगी 4a प्लस 3y इक्वल 14 एंड 3a माइनस 4y इक्वल टू 23. फ्रॉम हियर यू विल डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ y एंड ऑल्सो गेट द वैल्यू ऑफ a. That a's value you will put equal to 1/x and from there you will calculate the value of x. ऐसे ही सिमिलरली आपको फिफ्थ पार्ट में बोला गया है, फोर्थ पार्ट में 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 equal to 2 and 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 equal to 1. So what you will do here, अब आप इसमें लेट करेंगे, लेट 1/x minus 1 be a and 1/y minus 2 equal to b. तो आपकी इक्वेशन बनेगी 5a plus b equal to and 6a minus 3b equal to 1. अब आपकी जो भी वैल्यू आएगी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की, यू विल पुट इट इक्वल टू 1/x minus 1 and 1/y minus 2 साइमल्टेनियसली. तो आपको यहाँ से फिर सॉल्व करके x और y की वैल्यू ऑब्टेन. ऐसे ही आप बाकी पार्ट्स करेंगे. जिस भी पार्ट में आपको कोई सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम आती है, सब्स्टिट्यूट क्या किया जाए, तो यू कैन सिंपली पुट डाउन द पार्ट नंबर इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट. नाउ लेट्स कम टू वर्ड प्रॉब्लम. अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन आ रही है, आपको ध्यान होगा इन द प्रीवियस एक्सरसाइज ऑल्सो यू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. दैट मीन्स कि आपको कोई भी स्टेटमेंट गिवन है, आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, आप उससे इक्वेशंस को बनाते हैं और फिर उसे सॉल्व करते हैं. तो देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल कि हमेशा आपकी एक सिंपल इक्वेशन आएगी. हो सकता है आपकी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आए जिसमें आपका वेरिएबल जो हो वो डिनोमिनेटर में आए. देन यू विल फॉलो दिस फंडा ऑफ रिड्यूसिंग द इक्वेशंस टू लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स. Let's take the example first. For example,
example, in the example number 19, you are given a boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम. सबसे पहले आप ध्यान रखिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन में आप दो कॉलम्स बनाएंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम. स्पेस छोड़ के पहले आप कंप्लीट क्वेश्चन को रीड करेंगे और जितना डेटा आपको अपस्ट्रीम का गिवन है वो अपस्ट्रीम के कॉलम में लिखेंगे और जितना डेटा आपको डाउनस्ट्रीम का गिवन है आप वो डाउनस्ट्रीम के कॉलम में लिखेंगे. Here you are given a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 13 hours it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of stream and that of the boat in still water. You must remember कि हम लोग छोटी क्लासेस से ये पढ़ते हुए आते हैं कि जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम दी होती है और हमें कुछ फाइंड करना होता है तो वी अज्यूम दैट थिंग, जो भी हमें फाइंड करना है वी अज्यूम इट. तो ये यू हैव आस्क्ड टू फाइंड the speed of the stream and that of the boat in the still water. So what you will do, you will assume that let the speed of stream be x, let the speed of boat in still water be. अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब बात होती है अपस्ट्रीम की और डाउनस्ट्रीम की, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है टू गो विद द फ्लो ऑफ वाटर और अपस्ट्रीम का मतलब होता है टू गो अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर. आप ऑब्जर्व कीजिए, कोई भी पानी का बहाव है, इफ़ यू नो हाउ टू स्विम, तो अगर आप उस डायरेक्शन में अपने आप को स्विम कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है. और अगर आप अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर पे स्विम कर रहे हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाती है. व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज व्हेन यू आर फ्लोइंग विद द फ्लो ऑफ वाटर, तो आप जो वाटर की स्पीड है, फ्लोइंग वाटर की जो स्पीड है, दैट विल हेल्प यू टू पुश इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो आपकी स्पीड जो आप खुद अपनी मेहनत से क्रिएट कर रहे हैं प्लस जो वाटर की स्पीड है वो आपकी एक्चुअल स्पीड हो जाती है डाउनस्ट्रीम में. लेकिन अगर हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं तो यू आर फ्लोइंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर, तो पानी आपको रोकने की कोशिश कर रहा है. इट इज़ नॉट गोइंग विद यू, इट इज़ गोइंग अगेंस्ट यू. तो अगेंस्ट का मतलब होता है नेगेटिव साइन. तो इन दैट केस योर एक्चुअल स्पीड विल बी, जो आपकी स्पीड है, माइनस द स्पीड ऑफ वाटर. और हमेशा स्पीड ऑफ द स्विमर, या अगर हम बोट लेते हैं तो स्पीड ऑफ बोट विल बी ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द वाटर, हमेशा. क्योंकि अगर आपकी स्पीड पानी की स्पीड, अगर आपकी स्पीड पानी का जो रेट है फ्लो का उससे भी कम है तो आप अपस्ट्रीम कभी भी फ्लो नहीं कर सकते, बिकॉज इन दैट केस यू आर फ्लोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ वाटर. तो अपस्ट्रीम में क्या होगा कि आपकी, अगर मैं आपकी स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड x है और बोट ऑफ स्पीड स्टिल वाटर में y है, तो अपस्ट्रीम में होगा y माइनस एक्स और डाउनस्ट्रीम में होगा y प्लस. आप जो चाहें इसे लेट कर सकते हैं. अब आपके बुक में बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो x किलोमीटर पर आवर लेट करी हुई है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपकी y किलोमीटर लेट करी हुई है. आप कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप उसे x मानिए चाहे इसे. बस फर्क इतना है, अगर आप स्ट्रीम को x मान रहे हैं तो आप स्ट्रीम में y माइनस एक्स लिखेंगे, x माइनस वाई नहीं लिख सकते. आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट द बोट गोस 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours. यू नो द फॉर्मूला ऑफ टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो अब आपको गिवन है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए इफ यू आर कैलकुलेटिंग टाइम, तो व्हाट यू विल डू, 30 अपॉन y माइनस एक्स एंड प्लस आप इसमें आपको गिवन है 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. तो 44 डाउनस्ट्रीम के लिए आप लिखेंगे 44 अपॉन y प्लस एक्स और ये टोटल टाइम आपको गिवन है इक्वल टू 10. अब आपको नेक्स्ट पार्ट में गिवन है in 13 hours it can go 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम. तो अब आपकी ये सिचुएशन 1 हो गई है और सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि उसके लिए टाइम आप निकालेंगे तो 40 अपॉन y माइनस एक्स प्लस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी कि 55 अपॉन y प्लस एक्स, और ये आपको टोटल टाइम गिवन है इक्वल टू 30. अब you have to calculate the speed of stream and the speed of boat in still water. What you will do, if you are observing, यहाँ पर वेरिएबल फिर से डिनोमिनेटर में है, तो अब आपको कुछ ना कुछ अज्यूम करना होगा, तो हम लेट करेंगे, लेट 1 अपॉन y माइनस एक्स डी ए एंड 1 अपॉन y प्लस एक्स डी. अब यूजिंग दिस what you will get 30a plus 40
44b इक्वल 10 एंड 40a प्लस 55b इक्वल 13। अब आपके पास सिंपल इक्वेशंस आ गई हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और इवन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इफ आई एम यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देन व्हाट आई डू, आई राइट a b एंड नथिंग, जस्ट 1 और इवन नथिंग। अब आपको याद होगा जब भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं, वी कीप द नंबर ऑन द राइट साइड टू द, वी टेक द नंबर ऑन द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड। हमारी कंप्लीट इक्वेशन लेफ्ट साइड पर होती है और इक्वल टू के एक साइड पर हमारा 0 आता है। तो हम इस इक्वेशन को लिखेंगे 30a प्लस 44b माइनस 10 इक्वल टू 0 और इस इक्वेशन को हम लिखेंगे 40a प्लस 55b माइनस 13 इक्वल टू। अब आपको याद होगा वेरिएबल हम इस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले b1 वाला वेरिएबल, फिर c1, फिर a1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 44 माइनस 10, फिर वापस आपका a1 वाला वेरिएबल, फिर वापस आपका b1 वाला वेरिएबल, और इसके नीचे ही साइमल्टेनियसली हम सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं। पैटर्न सॉल्व करने का आपको याद होगा यही था, a अपॉन आप मल्टीप्लाई करेंगे 44 मल्टीप्लाई माइनस 13 माइनस 55 मल्टीप्लाई माइनस 10, दिस विल बी इक्वल टू b अपॉन माइनस 10 मल्टीप्लाई 40 माइनस 13 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 अपॉन 30 मल्टीप्लाई 55 माइनस 40 मल्टीप्लाई 44। आप इसे इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू विल गेट a अपॉन माइनस 22 इक्वल टू b अपॉन माइनस 10 इक्वल टू 1 अपॉन 11, 1 अपॉन माइनस 110। इसे सॉल्व करेंगे तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, a अपॉन माइनस 22 कीप इट इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 110, the minus sign will get cancelled out, you will get a equal to 22 upon 110 तो you will get a equal to 1 upon 5। अब आप ऐसे ही सिमिलरली b कैलकुलेट करेंगे इसी इक्वेशन से। कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, b अपॉन माइनस 10 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 110, माइनस साइन विल गेट कैंसिल आउट, विल गेट b इक्वल टू 10 अपॉन 110, विल गेट b इक्वल टू 1 अपॉन 11। अब आपके पास दोबारा से अब आप इसे पुट करेंगे जो आपने लेट किया था 1 अपॉन y माइनस एक्स डी ए एंड 1 अपॉन y प्लस एक्स डी। तो आप यहाँ वैल्यूज पे इक्वेट करेंगे, 1 अपॉन y माइनस एक्स इक्वल टू a था, a की वैल्यू आपको चाहिए 1 अपॉन 5 और 1 अपॉन y प्लस एक्स आपका b था, b की वैल्यू आपको चाहिए 1 अपॉन 8। यहाँ से आपको मिलेगा y माइनस एक्स इक्वल टू 5 एंड y प्लस एक्स इक्वल टू 11। अब आपके पास फिर से लीनियर इक्वेशन आ गई इन टू वेरिएबल्स। आप इसे अगेन सॉल्व करेंगे x और y की वैल्यू की, लेकिन इस केस में सिंपल है। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट बोलती हूँ, इस इक्वेशन को सेकंड, नंबरिंग आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप अभी नंबरिंग नहीं ली है क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे इतना स्पेस नहीं है कि मैं आपको सारा क्वेश्चन इकट्ठे दिखा सकूँ। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये सेकंड। इफ यू आर राइटिंग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट and equation second, so what you will get, y minus x equal 5 and y plus x equal 11. When you are adding it, it will cancel out, you will get 2y equal to 16. From here you will get y equal to 8 km per hour. ये आपकी स्पीड हो गई, स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर। अब you will put the value of y in any of the one equation and get the simultaneous value of x. Suppose I'm putting here 8 minus x equal 5, then you will get 8 minus 5 equal to x, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। तो your speed of stream is 3 किलोमीटर पर आवर, the speed of boat in still water is 8 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो आपके हो गए स्ट्रीम के बोट के क्वेश्चन जिसमें आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं। आपके पास इसी तरीके से और भी वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है। आई एम डिस्कसिंग विद यू वन मोर वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम योर एक्सरसाइज
which is related to the 1 day work. Question number second part. Exercise 3.6 of NCERT. Question number second part. Here you are given 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. तो अब आपको जो चीज़ फाइंड करनी है, पहला बात तो भैया आप उसे अज्यूम कर लेंगे. तो लेट 1 woman finish the work in X days and let 1 man finishes the work in Y days. ठीक है. अच्छा, अगर कोई इंसान X डेज में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है तो वो 1 डे में कितना वर्क करेगा? लेट्स से हम मानते हैं, इस क्वेश्चन में हम इस चीज़ को लिखते नहीं है, लेकिन हम मानते हैं लेट कंप्लीट वर्क बी 1. ये आप हमेशा याद रखिए कि जो भी आपका वर्क एंड डे वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप कंप्लीट वर्क को हमेशा 1 अज्यूम करके चलते हैं. 1 इज अ कंप्लीट नंबर, क्योंकि आपका कोई भी फ्रैक्शन होता है 1 पे कंप्लीट हो जाता है, तो हम कंप्लीट वर्क को 1 लेट करके चलते हैं. तो अगर आप 1 डे वर्क निकालेंगे, 1 डे वर्क ऑफ 1 वुमेन, तो वो आपका आएगा 1/x. की कंप्लीट वर्क था 1, उसको करने के लिए x डेज लगे, तो 1 डे में वो कितना काम करेगी? 1/x. एंड 1 डे वर्क ऑफ 1 मैन होगा 1/y. अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे. आपके क्वेश्चन में लिखा है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. तो यानी कि अगर मैं 1 डे वर्क लेती हूँ वुमेन का तो वो है 1/x. और कितनी वुमेन यहाँ एम्प्लॉय हुई है? 2 वुमेन. तो आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस कितने मैन एम्प्लॉय हुए? 5 मैन, और उनका 1 डे वर्क है 1/y. एक का 1 डे वर्क है 1/x 1 वुमेन का, तो 2 वुमेन के लिए होगा मल्टीप्लाई बाय 2. एक मैन का 1 डे वर्क है 1/y, तो 5 मैन का होगा मल्टीप्लाई बाय 5. और ये अब ये टोटल वर्क हो गया 1 डे का, कितने वुमेन का? 2 वुमेन का और 5 मैन का. लेकिन आपको बोला गया है कि इन्होंने जो कंप्लीट वर्क करा साथ मिलके वो 4 डेज में करा, यानी कि ये तो टोटल इनका एक दिन का काम हो गया. व्हाट अबाउट 4 डेज? यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 4 एंड दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि अब ये वापस से वर्क ही तो आया. 1 day work of 1 woman multiply by 2 and 1 day work of 1 man multiply by 5, it will give you 1 day work of 2 women and 5 men together, and those 2 women and 5 men are taking 4 days to complete the whole work and complete work was 1. तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो what you will get 8/x plus 20/y equal to 1. अब आपकी ये पहला केस आ गया. सेकेंड केस में आपको गिवन है 3 women and 6 men can finish it in 3 days. तो वापस से आप वही करेंगे. 3 women यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1/x एंड 6 men, तो यानी कि 6 मल्टीप्लाई 1/y. अब इनको साथ में लगे हैं 3 days टू कंप्लीट द होल वर्क. अब आपको यहाँ से मिलेगा 9/x प्लस 18/y इक्वल टू 1. अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई सॉल्व करके. वापस से क्लियरली दिख रहा है कि आपकी वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में है, तो आप लेट करेंगे, लेट 1/x बी a एंड 1/y b. एक इम्पॉर्टेंट चीज, इट इज नेवर नेसेसरी टू अज्यूम इट एज a and b. यू कैन टेक एनी वेरिएबल वट एवर यू विश टू in the place of a and b, that is up to you, completely up to you. अब आप इसे अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो what you will get 8a plus 20b equal to 1 and 9a plus 18b equal to 1. ये आपकी इक्वेशन हो गई 3, ये आपकी इक्वेशन हो गई 4.
आपकी चॉइस है कम्प्लीटली कि आप इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, यू ऑप्ट एलिमिनेशन मेथड फॉर इट और इवन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. If I am taking cross multiplication method, what I'll do, first of all, I'll completely shift all the variables or even the numbers on the left side so that I have 0 on one side of the equal side. So I'll get 8a plus 20b minus 1 equal to 0 and 9a plus 18b minus 1 equal to 0. अब इसे सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ लिखूंगी a, b और 1. वेरिएबल आपको पता है लिखने का तरीका. सबसे पहले आएगा आपका b1 यानी कि 20, फिर c1, फिर a1, देन अगेन यू विल हैव b1. इसी के नीचे आप दूसरी इक्वेशन के लिए लिखेंगे. सबसे पहले b1 आपका, b2, फिर c2, फिर a1, a2 और फिर वापस से b2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, a अपॉन 20 multiply minus 1 you will get minus 20 minus 18 multiply minus 1 you will get minus 18 equal to b upon minus 1 multiply 9 you will get minus 9 minus 1 multiply 8 you will get minus 8 equal to 1 upon 8 multiply 18 minus 9 multiply 20 144 minus 180. ये आपकी इक्वेशन आ गई. आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू गेट a अपॉन -2 इक्वल टू b अपॉन -1 इक्वल टू 1 अपॉन -36. ये आपके पास तीन इक्वेशन, ये आपके पास कंप्लीट इक्वेशन आ गई है. आप इसे 1 बाय 1 इक्वेट करेंगे. फर्स्ट इक्वेटिंग a अपॉन -2 इक्वल टू 1 अपॉन -36 माइनस साइन विल गेट कैंसिल आउट. फ्रॉम हियर यू विल गेट a इक्वल टू 1 अपॉन 18. And for b you will put b upon -1 equal to 1 upon -36. You will get b equal to 1 upon 36. अब आपको पता है आपने लेट किया था 1 upon x as a and 1 upon y as b. तो अगर आप उसे पुट करेंगे तो you will get 1 upon x equal to 1 upon 18. From here you will get x equal to 18 and 1 upon y equals to 1 upon 36. So y equal to 36. That means one woman finishes the work in 18 days whereas a man can finish the complete work in 36 days. Similarly, you can solve all the questions and the examples as well. Try solving from other books also. If you have any problem from NCERT, post the question number, and if you are taking any other book, just post the picture or write down the question in the comment section. Thank you.